کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. جو اس کے حمایتی ہے اور جس طرح وہ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں، اس کے حمایتی کو بھی لگام ڈالی جائے. شاہزیب خانزادہ اور انسان بھٹی، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں جن کو تم نے پیش کیا ہے ان کا عقیدہ خود ٹھیک نہیں ہے. تو یہی بات انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مظاہرے کریں، یہ بات درست ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. پہلے ان لوگوں کے خلاف مظاہرے کریں، ان کے خلاف 295C کی FIR درج کروائیں، قانون کو فیصلہ کرنے کی. سرکاری اداروں پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر صحافیوں کو آپ اس انداز میں دھمکیاں لگائیں گے، بڑے بڑے نام ہیں ان کو دھمکیاں لگائی ہیں، ٹی وی چینلز کا نام لے کے آپ نے دھمکی لگائی، بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سردار محمد ارشاد ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل قانون کی نگری دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کی اپڈیٹ میں آپ سے شیئر کروں گا. کل کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے میں بتاؤں گا. لاہور میں سنی تحریک نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں یہ خبریں، یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر 295B کی ایک FIR کے اندراج کے لیے کورٹ سے آرڈر لے لیا گیا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارم کروں گا. اس کے علاوہ بھی ایک دو اہم خبریں ہیں میں آپ سے شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. تو سب سے پہلے تو میں انجینئر صاحب کے کیس کی اپڈیٹ آپ سے شیئر کروں. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں انجینئر صاحب کی یہ جو کویشمنٹ کا کیس ہے جن کے وکلاء نے کیا ہوا ہے، کل اس کی ہیرنگ ہے. انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائیں گے اور ان کے وکلاء کی بھرپور تیاری ہے. کل انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ وہ پیش ہوں گے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اچھی خبریں ملیں گی. کویشمنٹ کی پروسیڈنگ کے بارے میں کل جو ہے وہ کارروائی کو ہیرنگ ہوگی کورٹ میں، اور اس کی جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی کل انشاءاللہ پھر میں آپ سے ٹائملی شیئر کر دوں گا. جیسے ہی میرے پاس کی تفصیلات آئیں گی اسی وقت میں آپ سے شیئر کروں گا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہو رہی ہے اس طرح کی پوسٹیں کہ انجینئر صاحب کے بارے میں کورٹ سے کوئی 22A کی پٹیشن دائر ہوئی تھی، اس کے اوپر کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ 295B کا پرچہ بھی درج کیا جائے. ان خبروں میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی قسم کا کوئی نوٹس ان خبروں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. یہ صرف محض ایک پروپیگنڈا ہے، بس جو لوگ کر رہے ہیں صرف ڈی مورلائز کرنے کے لیے. ایسا کوئی بھی حکم ابھی تک کورٹ سے جاری نہیں ہوا. اس بارے میں ایک اصولی بات یاد رکھیں. پہلے ایک پوسٹ ایسی آئی جس میں ایک پروسیکیوٹر کا نام تھا، حالانکہ وہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ ان کی ٹرانسفر ہو چکی ہے اس خبر سے 4-5 دن پہلے، اور وہ جا چکے ہیں. جب وہ ہیں ہی نہیں وہاں فیلڈ میں تو کیا انہوں نے کرنا ہے. ایک بات اس کے بعد پھر خبریں آئیں کہ جی FIA نے یہ کیا ہے وہ کیا. ایک بات اصولی یاد رکھیں، جب 22A کی پٹیشن دائر ہوتی ہے کورٹ میں تو سب سے پہلے کورٹ جو ہے وہ کنسرننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے، پولیس ہے، FIA ہے، وٹس ایور، ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے، کمنٹس مانگتی ہے. ایسا کوئی نوٹس ابھی تک کسی ڈپارٹمنٹ کو، FIA کا نام لیا جا رہا ہے، FIA کو ایسا کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا. ایسی کوئی پٹیشن کورٹ میں زیر سماعت ہے ہی نہیں. تو یہ بہرحال اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ اس کے بارے میں سے زیادہ میں تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. پھر اسٹوڈنٹس کے پھر مجھے فون آتے ہیں کہ یہ فلاں وکیل صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے وہ کہا. میں اس کے بارے میں بہت بات کر چکا ہوں، میں زیادہ اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. آج میرا ایک پوڈ کاسٹ جو ہے ڈاکٹر احمد نصیر صاحب کے ساتھ آلریڈی ریکارڈ ہو چکا ہے، آج وہ شام 8 بجے ریلیز ہوگا. اس میں نے ان سارے سوالوں کا جواب دے دیا، آپ کو دیکھ لیجئے گا. اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا. البتہ اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ اس طرح کی جو ایکسپلینیشن کی جا رہی ہیں کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وکلاء جو ان کی انجینئر صاحب کی وکلاء کی ٹیم تو ماشاءاللہ بہت زبردست ایکسپرٹ ہے، وہ تو ہیں ہی. عام وکیل کو بھی، ہائی کورٹ کے عام وکیل کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آرٹیکل 199 کیا ہے آئین کا، اور اس کو کیوں اویل کیا جاتا ہے، کب اویل کیا جاتا ہے. یہ بات جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے اور وکلاء کو بتایا جائے یہ بنیادی باتیں. اینی اس سے زیادہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. اب آ جاتے ہیں، لاہور میں سنی تحریک نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے. یہ کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی گروہ کا، کسی بھی فرد کا، کسی بھی سیاسی جماعت
का, किसी भी मजहबी जमात का ये हक है कि वो एहतजाजी मुजाहरा करे या अपनी आवाज बुलंद करे किसी भी इशू के ऊपर, किसी मामले के ऊपर जहाँ वो समझे। ये राइट ऑफ जो है स्पीच हासिल है हमें, आइन के आर्टिकल 19 में ये राइट ऑफ स्पीच है। हर इंसान को, हर शहरी को इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये जो वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये याद रखें, ये राइट ऑफ स्पीच हर किसी को हासिल है। अब असल सवाल ये है कि उस मुजाहरे के दौरान किस किस्म की लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन सी धमकियां लगाई गई हैं, खुली धमकियां लगाई गई हैं, ये असल बात मौजूद है। एक बुनियादी बात याद रखना चाहिए, आपका जो भी मौक़िफ़ है आप अपने मौक़िफ़ को बयान करें। आपके ख्याल में एक स्कॉलर ने कुछ अल्फाज अदा करके गुस्ताखी का मुजाहरा किया है, आपने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया, आपने उसके खिलाफ जो है मुख्तलिफ फोरम्स को यूज कर रहे हैं, ये आपका राइट है, आप यूज करें। और कानून को फैसला करने, अदारों को फैसला करने, इस एहतजाजी मुजाहरे में जो बड़ी बड़ी वायलेशन हुई हैं, जो काबिल एतराज चीजें हैं, ये नंबर 1 सरकारी अदारों पे प्रेशर डालने की कोशिश की गई है, उनको ओवरऑ करने की कोशिश की गई है, कोयर्स करने की कोशिश की गई है, इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई है, उनको थ्रेट किया गया है बाकायदा, और उनका घेराव करने की धमकियां दी गई हैं और घेराव करने के ऐलान किए गए हैं जो कि इंतहाई काबिल एतराज है। ये राइट टू स्पीच जो है वो बिल्कुल हासिल है, हर किसी को है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की राइट टू स्पीच के ऊपर ऑब्जेक्शन करें, जिसके जो कि अगले हिस्से में मैं आ रहा हूँ। जिस रोड पे गाड़ी चलाना आपका राइट है, आपको लाइसेंस होता है, लेकिन आपको लाइसेंस दूसरों को मारने का नहीं है कि गाड़ी से दूसरों को आप मार दें, या गाड़ी से दूसरों की गाड़ियों में गाड़ी लगा के एक्सीडेंट कर दें, या दूसरों का रास्ता रोक लें, या दूसरों को सड़क पे गाड़ी ना चलाने दें। इसका लाइसेंस आपको हासिल नहीं होता, याद रखें। इसी के ऊपर फिर आपको अगर ऐसा करेंगे तो ट्रैफिक वायलेशन में इसको कंसिडर किया जाएगा और उसका आपका चालान किया जाएगा। तो आप याद रखें, राइट टू स्पीच आपको हासिल है, लेकिन दूसरों की राइट टू स्पीच के ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, उसके खिलाफ मुजाहरा नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कोई धमकी नहीं लगाएंगे। ये बात याद रखें। एक तो उस एहतजाजी मुजाहरे में जो लैंग्वेज यूज की गई वो इंतहाई माजरत के साथ मुनासिब नहीं है। मैं यही कहूंगा, हमारे काबिल एहतराम उलमा हैं और उनकी खिदमत में मैं दस्त रिक्वेस्ट करूंगा, ये उनके शायान निशान नहीं है, उलमा हैं, दीन का इल्म उन्होंने हासिल किया, वो कोई सोसाइटी के आम तबका में उनका शुमार नहीं है, वो ताजर नहीं है, वो सनतकार नहीं है, वो काश्तकार नहीं है, वो दुकानदार नहीं है, वो मजदूर नहीं है, वो मजदूरों की रक्षा यूनियन नहीं चला रहे कि आके सड़क पे जो है वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे। वो उलमा हैं, मदारस से उन्होंने दीन की तालीम हासिल की है और वो हमारी दीनी रहनुमाई के मर्तबा पे फाइज हैं और उन्हें अपने इस मर्तबा का एहसास करना चाहिए। इस किस्म की धमकी अमेज ज़बान है, उसका इस्तेमाल नामुनासिब है, मैं यही कहूँगा। एक तो वो उन्होंने उसके अंदर किया, फिर अदारों का घेराव करने की, धमकियां लगाने की कि हम यहाँ भी करेंगे, फलां शहर में भी करेंगे, फलां शहर में भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। जब आपने एक एप्लीकेशन दे दी तो उसका वो फोरम है, उसने उसका फैसला करना है। कोई शख्स, मैं या आप, उसको मजबूर नहीं कर सकते। अगर उन्होंने गलत फैसला किया है तो उसके खिलाफ आप रेमेडी अवेल करेंगे। आप पास कानून ने रास्ता दिया हुआ है, कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इंतहाई गैर कानूनी, गैर आईनी फैसला दिया, लेकिन उसके खिलाफ रेमेडी ही अवेल की जाएगी। उनके वकला रेमेडी ही अवेल करेंगे और रेमेडी ही अवेल कर रहे हैं। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं किया कभी आज तक किसी ने, लेकिन उसके खिलाफ जो अगर जबानी बात भी किया तो अपना राइट जो है, राइट टू स्पीच, वो यूज किया है, उसका इस्तेमाल किया है और डिसेंसी के अंदर रह के उनके तनकीद भी किया, सारा कुछ किया है, लेकिन उनको धमकी नहीं लगाई, उनको ऐसा बात नहीं की जो कि नामुनासिब होती है। किसी भी फ्री के लिए ये मुनासिब नहीं है इस तरह की धमकियां लगाना। आप एक फोरम पे आपने एप्लीकेशन दी, पुलिस को, एंटी करप्शन को, FIO को या किसी भी दूसरे अदारे को एक आपने एप्लीकेशन किसी ऑफेंस के बारे में दी, तो ये उसका राइट है, उसने उसको स्क्रूटनी करनी है, उसको उसकी इंक्वायरी करनी है, उसको देखना है, ये ऑफेंस बनता है। ये तो नहीं है कि आप जो शख्स मुंह उठा के चला जाएगा तो उसकी उसी वक्त उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो अदारा हरकत में आ जाएगा। अदारे ने अपना कानूनी मामला को देखना है कि क्या इसकी वायलेशन हुई है या नहीं हुई, उसके बाद उसने उसके अकॉर्डिंग फैसला करना है। और जो उसको फैसला करेगा, अगर जो भी कंसर्निंग फरीक है, जो उससे मुतासर फरीक है, एग्रीव्ड पार्टी है, वो उसके खिलाफ रेमेडी अवेल करेगा, उससे हायर फोरम पे जाएगा। आपके पास अदालतें मौजूद हैं, क्या आपने वो सारे फोरम यूज कर लिए हैं? क्या आपने एहतजाजी मुजाहरा इसमें इतनी सख्त जबान इस्तेमाल की है और धमकियां लगाने वाला सिलसिला अगर आपने शुरू किया है तो उससे पहले आपने क्या सारे फोरम अवेल कर रही हैं? आपको इंसाफ कहीं से नहीं मिला और फिर आप मायूस होकर उसके बाद आप सड़कों पे आ गए? ऐसा नहीं है। आपने एक एप्लीकेशन दी, उसके पे धौंस और
जमाने के लिए फिर आपने ये पावर ऑफ शो किया और पावर शो किया अपनी, ये उसको इंटिमिडेट करने के अलावा इसको और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। बहरहाल ये आपने किया। उसके बाद फिर यही बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आपने सहाफियों को धमकी दी, आपने उन लोगों को धमकी दी जो इंजीनियर साहब के हक में बात कर रहे हैं। फिर अगर इससे भी आगे बढ़ के आपने जो बात की, जो मैं अपने वीलॉग्स में पहले अशारातन कह चुका हूं और बता चुका हूं कि मैं इसके ऊपर आने वाले दिनों में बात करूंगा, और वो आपने बात उस तरफ ले गए हैं, ये कि आप और खुले आम ये आपने ऐलान कर दिया। अगरचे कि मेरे लिए ये कोई हैरत वाली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, मेरे इल्म में कोई इजाफा नहीं हुआ, मुझे तो इन सारी चीजों का पता है। हाँ, आपने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। उन लोगों को जो हमारे इनोसेंट हैं, जो हमारे वो भाई हैं जो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं, हमारे वो भाई जो ये कहते नहीं ये ऐसा नहीं है, ये आपने उनकी गलतफहमी हो सकता है दूर की हो तो की हो, मेरी तो कोई गलतफहमी इसमें दूर नहीं हुई, मुझे तो इन सारी चीजों का पता है। जलसे में ये फरमाया गया, उन एंकर्स को भी धमकी दी गई। ये सहाफियों का काम है, खबर देना, तबसरा करना, अपनी राय का इजहार करना, और सहाफी का काम क्या है? अगर सहाफियों को आप इस अंदाज में धमकियां लगाएंगे, बड़े बड़े नाम है उनको धमकियां लगाई है, टीवी चैनल का नाम लेके आपने धमकी लगाई, उस टीवी चैनल का कसूर क्या है जिसका नाम आपने जियो का नाम लिया गया वहां पे, और उसका कसूर क्या है? मैं उस पूरे प्रोग्राम को तो जाहिर है शेयर नहीं करूंगा, इतना टाइम इसमें नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ कंसर्निंग चंद सेकंड का एक जिसमें खबर नशर की गई, तो आप इसको देख लें, उसमें क्या काबिल एतराज बात है जिसके ऊपर इतना हंगामा खड़ा किया गया। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने कहा है कि किसी और के गुस्ताखाना कलमात को नकल करना तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता। इस पर तौहीन के कानून का इत्तलाक़ नहीं होता। किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो इस बुनियाद पर किसी को गुस्ताख करार दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तौहीन के केस के तनाजुर में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा अमीन शहीदी, मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द, जावेद अहमद गामदी, डॉक्टर मुफ्ती नौमान नईम, अल्लामा जवाद नकवी, मौलाना अम्मार नासिर और मुफ्ती काशिफ अली की राय पेश की गई। अब मुझे बताएं इसमें क्या काबिल एतराज़ है? यानी कि अब ये जो राइट टू स्पीच है, ये सिर्फ किसी खास तबके का है, ये सिर्फ उलमा को हासिल है, या किसी उलमा के भी खास तबके को, उलमा को भी नहीं। वो उस तरफ तो मैं आ रहा हूँ। अगर उलमा को हासिल है तो जिन उलमा ने फतवे जारी किए हैं इंजीनियर साहब के हक में, उनके ऊपर आप क्यों गोलाबारी कर रहे हैं? उनके ऊपर संगबारी क्यों है? और उनको आप धमकियां क्यों लगा रहे हैं? उनके क्यों आप उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उनका वो उलमा नहीं है? क्या उनको राइट ऑफ स्पीच नहीं है? या राइट ऑफ स्पीच सिर्फ आपको है? अगर चलो उलमा को कह लें कि बाकी किसी को राइट ऑफ स्पीच नहीं है इस माशरे के अंदर, सिर्फ उलमा को है, चलो मैं ये बात भी मान लेता हूँ, ठीक है, इस तरह कर लें। लेकिन उलमा में भी एक खास तबका रह जाएगा, एक जत्था रह जाएगा, एक ग्रोह रह जाएगा, जिसको जो है जो वो समझता है, जो दीन की जो ताबीर और तशरीह वो करता है वही मानी जाएगी, इसके अलावा बाकी सारे काबिल गर्दन जदनी है। अगर राइट ऑफ स्पीच सिर्फ उलमा को हासिल है तो भी चलो इस हद तक भी मान लेते हैं, फिर उलमा सबको हो ना। ये तो नहीं कि आपके मसलक से ताल्लुक रखने वाले आपके हम ख्याल जो उलमा है सिर्फ उन राइट टू स्पीच हासिल है, बाकी किसी को हासिल नहीं है। ये नामुनासिब बात, ऐसा ना करें। आपने धमकी दी उन जो है एंकर्स को, शाह भट्टी साहब का भी नाम लिया गया, शाहजेब खानज़ादा का भी नाम लिया गया। उन्होंने क्या जुर्म किया है? उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, सिर्फ ये बात की है कि भाई इसको ये मामले को देखें, इसको आग ना भड़काएं, आग पे पानी डालें, देखिए मामले को, कोई ऐसी गलत बात नहीं की उन्होंने। और शाहजेब खानज़ादा साहब ने तो सिर्फ उलमा की राय रखी है। अब उलमा की राय रखना भी जुर्म है, उलमा की राय को शेयर करना भी जुर्म है, यानी कि अपनी बात तो नहीं ना की। शाहजेब खानज़ादा ने कोई फतवा जारी नहीं कर दिया कि आप एतराज करें भी आप मुफ्ती हैं फतवा जारी कर रहे हैं। शाहजेब खानज़ादा ने मुफ्तियाने इकराम का, उलमाए इकराम की राय जाहिर कर दी, सामने ले आए। ये इतना कहना भी, इतना करना भी जुर्म है। आप अपनी बात करें, कोई रोकने वाला आपको नहीं है, लेकिन आप धमकियां ना लगाएं और उलमा के ऊपर एतराज क्यों कर रहे हैं? और इससे आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मुकदमा को सच साबित कर दिया। उनके दावे को, उनके क्लेम को, उनकी बातों को आज से जो 10, 12, 15 साल वो कहते रहे हैं, उनके ऊपर मोहर तस्दीक साबित कर दिया। वो यही तो कहते रहे हैं। मिर्जा मालूम को हम कह रहे हैं कि उसे दिल खोल दूसरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उसे तख्ता-ए-ताल में लटकाया जाए। उसके साथ साथ हम ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि जो उसके हिमायती है और जिस तरह वो सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी कर रहे हैं, उसके हिमायती को भी लगाम डाली जाए कि जो उसके हिमायती है
उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बिलखसूस शाहजेब खानजादा और इरशाद भट्टी, शाहजेब खानजादा और इरशाद भट्टी, शाहजेब खानजादा और इरशाद भट्टी, हम बड़े हैरान हैं कि जियो न्यूज पर जो उसकी हिमायत के अंदर फिक्र चलाए गए और जिन लोगों की तहरीरें और जिनकी गुफ्तगू दिखाई गई और बताया गया कि उलमाए किराम मिर्जा मनूर के हक में निकल आए। मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिनको तुमने पेश किया है उनका अकीदा खुद ठीक नहीं है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिनको तुमने पेश किया है उनका अकीदा खुद ठीक नहीं है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिनको तुमने पेश किया है उनका अकीदा खुद ठीक नहीं है। उन मुफ्तियान इकराम के बारे में आपने राय क्या दी है जिन्होंने इंजीनियर साहब के बारे में फतवा जारी किया है या उनकी हमायत की है या कहा है ये गुस्ताखी नहीं है, उनके बारे में आप क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? कह रहे हैं उनके अपने अकायद ही दुरुस्त नहीं। तो यही बात इंजीनियर साहब कह रहे हैं, कौन सी नई बात है? आप अपने अलावा तो किसी को मुसलमान समझते ही नहीं है। आपने उनको गुस्ताह करार दिया कि वो तो खुद गुस्ताख है, तो किसी ने गुस्ताखी साहबा किया है, किसी ने गुस्ताखी कुरान की गुस्ताखी की है, किसी ने कोई गुस्ताखे रसूल है वगैरह वगैरह। यानी कि आपके इसका मतलब तो ये होगा कि मुल्क में सिर्फ एक मसलक रह जाएगा जिसकी बात मानी जाएगी, बाकी तमाम मसालक के लोग जो हैं वो मुसलमान ही नहीं है, उनकी तो बात काबिल इतना है ही नहीं। तो ये वही बात है, ये बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है। ये वो बात है जो मैं तो जिसका रोना तो रो रहा हूँ कि यहाँ मसला सिर्फ ये नहीं है। और ये भी याद रखें, और ये बात मसलक से भी आगे निकल जाएगी। ये सिर्फ मसलक में भी एक जत्था और ग्रोह रह जाएगा जो कहेगा कि मैं हक पे हूं और मेरी बात ही हक है, इसके अलावा बाकी तमाम बातिल है। अब ये फैसला स्टेट ने करना है, ये फैसला अदारों ने करना है। ये हमारे अदारों पे जिम्मेदारी है कि वो फैसला करें कि मुल्क को कानून के मुताबिक चलाया जाएगा, आइन के मुताबिक चलाया जाएगा, या मुल्क को जत्थों के रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा। जो आइन ने आर्टिकल 4, आर्टिकल 10A और आर्टिकल 19 की तो धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। जो राइट टू फेयर ट्रायल है और राइट टू स्पीच की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। यानी ये तो बड़ी अजीब बात है कि आपके अलावा जिसकी जो भी सोच है वो गलत है। जो आप फरमाएंगे, जो आपके कलम से निकल गया है, जो आपकी जुबान से निकल गया है, वही दुरुस्त है, बाकी सब गलत करार पाएगा। बहरहाल अब ये रियासत को फैसला करना है और रियासत को फैसला करना चाहिए कि उसने आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलना है या महज जत्थों की ख्वाहिश के मुताबिक चलना है। और अगर रियासत ने फैसला नहीं करना या रियासत ने फैसला ना किया तो मेरी बात याद रखें, फिर बहुत तबाही होगी, फिर हालात कंट्रोल से बाहर होंगे, फिर जिसका जो बस चलेगा वो करेगा। जब तशरीह की बात आएगी, इंटरप्रिटेशन की बात आएगी दीन की, तो हर मसलक ने अपनी इंटरप्रिटेशन की हुई है। अगर मसालक की इंटरप्रिटेशन के ऊपर आ जाएंगे मामला तो कहाँ चले जाएंगे? और अदालतों को प्रेशराइज करके उनके, और फिर आखिरी बात मेरी इस वीलॉग में ये है, अगर यही मामला है, अगर चंद अल्फाज की अदायगी जो कि नीयत भी ऐसी नहीं है, वजाहत भी कर दी गई, आपको कबूल नहीं है, तो फिर मैंने कल एक वीलॉग जो शेयर किया है उसमें जो इतराज़ात उठाए गए हैं उनका हमारे उलमा, इस मसले के उलमा इकराम को जवाब देना चाहिए। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने तौहीन रसालत की है खुदा न खास्ता, और अगर वो इस हवाले से मुजरम करार पाते हैं तो मुझे बताएं उन अबारात का क्या करेंगे जिनका हवाले मैंने नहीं दिया। याद रखें, एक मौलाना ने दिया, मौलाना साजिद नक्शबंदी साहब ने दिए और हवाले किताबों से पढ़ के दिए। कौन सी किताबें? आपके मसलक की किताबें, आपके बुजुर्गों की किताबें, आपके बड़ों की किताबें। अगर इंजीनियर साहब के वो अल्फाज बेअदबी में आते हैं, वो अल्फाज गुस्ताखी में आते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा गुना बड़े अल्फाज जो किताबों में दर्ज हैं, जो आपके बड़ों ने, आपके उलमा ने, बुजुर्गों ने अदा किए हुए हैं, और वो किताबें आपके प्रिंटिंग प्रेस से छप रही हैं, आपके मकातब में पढ़ाई जा रही हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपके पास लाइब्रेरियों में महफूज है, आप उसको पढ़ रहे हैं। अगर इन किताबों में दर्ज अल्फाज गुस्ताखी में शुमार नहीं होते तो फिर इंजीनियर साहब के कहाँ कैसे शुमार हो सकते हैं? आपको पहले इस बात का भी जवाब देना चाहिए। ठीक है, आप मुजाहिरे करें, ये बात दुरुस्त है, मैं भी आपके साथ हूँ, पहले आप इसका फैसला कर लें। मैंने जो हवाला जात पेश किए हैं, हमें धमकियां लगाने की बजाय आप उन हवाला जात के, उन सवालात के जवाब दें, आप उनके जवाब दें, उसके बाद मुजाहिरे करें, मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। आप आए मैदान में, पहले उनके जवाब दे दें, पहले उन लोगों के खिलाफ मुजाहिरे करें, उनके खिलाफ 295C की FIR दर्ज करवाएं और उन सारे
जो पब्लिशर्स है उनके ऊपर भी, जिन्होंने इसको छापा, छापे खाने वालों के ऊपर भी, जो पढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी, जो पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर भी, जिनके घरों में किताबें मौजूद हैं सब के ऊपर 295C लगवाएं। उसके बाद आ जाते हैं इंजीनियर साहब की बात भी कर लेंगे, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। बहरहाल इंजीनियर साहब की केस की अपडेट मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाअल्लाह अजीज दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज has been done।